Hello बच्चों, I'm your maths teacher and from today onwards you are going to study maths with me. I hope you all are doing very good in the pink of your health. So students, let's start our class. So we have our chapter number 1 and name of the chapter is number up to 100. मतलब बच्चों और क्या है ये प्रीवियस चैप्टर्स के रिवीजन है. प्रीवियस क्लास में जो आपने नंबर्स नेम सीखे थे बच्चों, we are going to revise that only. So here let's start. We have learned the numbers up to 100. Now revise what have you learned. So first one is write the numbers name for the given numerals. मतलब बच्चों जो numerals दिए हैं आपको, you have to write the number names of that. So students here, the first one is first example is given to you that 14 number name is in words 14. The spelling of the word you need to write in the given place. So students, you all know 14 and here it's 15. So students, after that this is 32 and this is 60, this is 68, this is 96, this is 42, 85, 37 and here 60, 75, 82, 90, 94 and 70. इसी के जैसे बच्चों आप सभी को इनकी क्या लिखनी है? You have to write them in words. Like if I write here 32. Okay students, क्या लिखा मैंने? 32. इसी के जैसे बच्चों आप सभी को लिखना है यहाँ पर in words. 32 लिखना है, 85 भी, 42 भी, 68 भी, 96 भी, 37 भी. अब जैसे I am writing here 85. Okay students, so I have written here 85. इसी तरीके से बच्चों जो सारे जो बचे हुए हैं उन सबको आप खुद ही लिखेंगे and practice करेंगे. Okay students, so this was very easy and very easy recap. We all are know that you guys are very able to write the number of these given numerals. So बच्चों इस सारे numerals का अब words में number लिखेंगे, नाम लिखेंगे और उसके बाद इसको practice करेंगे, solve करेंगे. उसके साथ हम लोग next question में जाते हैं. So we have the next question is write the following into digits. अब बच्चों पहले क्या था, digits में लिखा हुआ था, आपको words में यहाँ पर लिखना था. Now it's given in words. Now you have to write in digits. So students, here we can see first one is done for you here 78. So 78. Now 44. So what we'll write here 44. If I talk here 59, it's 59, 59. इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर 95 and 35 and here 66. So students, the rest thing you can do with yourself because they are all easy because we have covered in our previous classes. Okay students, so 58, 29, 30, 34, 43 and 62, 18, 20, 57, etc. You can write them in the given circle very nicely. So after that you have to fill these circles with the numbers. Okay. The next one is RC. What comes just before? मतलब बच्चों इनके पहले कौन सा नंबर आता है हमें वो लिखना है. तो बच्चों या फिर हम कह सकते हैं बच्चों ये जो 88 है या 48 किसके बाद आता है, क्योंकि हमें बिफोर लिखना है इसीलिए हम पहले वर्ड यूज करेंगे. मतलब 88 के पहले क्या आता है वो लिखेंगे. 40 के पहले क्या आता था, 39 लिखा. अभी जो बच्चों 88 है वो किसके पहले आता है किसके बाद में आता है हमें पता होना चाहिए, तभी हम बिफोर एंड आफ्टर का पता लगा सकते हैं. तो 88 बच्चों 87 के बाद आता है here and 25 किसके बाद आता है, मतलब 25 के जस्ट पहले क्या आता है, क्योंकि ये 5 है, 5 से पहले तो बच्चों 4 ही आता है ना. तो 25 से पहले क्या आएगा बच्चों, here we will write here 4. It's
24. After that 68. अभी 8 से पहले क्या आता है बच्चों? It comes 7. तो 68 से पहले क्या आएगा? 67. And 42 से पहले क्या आएगा बच्चों? It's 41. And 65 से पहले क्या आएगा बच्चों? It's 64. Because जो 5 है वो 4 के बाद ही आता है, इसीलिए 65 से पहले क्या आएगा? 64. As it is here also 75. अब 75 है तो 5 से पहले क्या आता है बच्चों? 4. यानी कि 75 से पहले हम क्या लिखेंगे? 74 लिखेंगे. We will write here 74 like that. Now again 28. 8 से पहले क्या आता है? 7 आता है of course. तो 28 से पहले क्या आएगा यहाँ पर? 27 आएगा. Next if we move forward, here it is 98. अभी 8 है. As it is 8 से पहले क्या आया था? 7 आया था. इसीलिए बच्चों 98 से पहले क्या आएगा? 97 आएगा. Understood students? After that we have what comes just after. अब इसके बाद में क्या आता है ये हमें करना है. पहले हमने किया, उनके पहले क्या आता था? Just before new number we had to write. Now we have to write just number after. इसके बाद just क्या आता है? So after 49 it comes 50. और बच्चों ये before and after आप तब कर पाओगे अच्छे से जब आपको अच्छे से काउंटिंग यानी गिनती आती है. So this is in other words these are countings only. So for this after 49 50 will come. After 57 here 58 will come. After that 30 it will come 31. बच्चों पता ही है आपको 24 के बाद आप काउंटिंग्स में क्या काउंट करते हो? 25 काउंट करते हो. आफ्टर दैट 46 के बाद व्हाट यू गाइस काउंट? यू विल काउंट 47. 75 के बाद 76 एंड हियर 92, 18 एंड 82. ये बच्चों आप खुद लिखिए. जैसे हमने काउंटिंग्स की हेल्प लेकर के दोनों बॉक्सेस को फिल किया है उसी तरीके से बच्चों आपको उसको भी फिल करना है with the help of counting. Okay students, so here you will do this with yourself. Next we have question number E and it is what comes in between. अब बच्चों ये भी काउंटिंग्स का ही एक ब्रदर है और इसके बीच में क्या आता है, दो नंबर्स के बीच में क्या आता है ये आपको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर लिखना है. It is also based in काउंटिंग. सो 62 और 64 के बीच में क्या आता है? 63 आता है. इट इज गिवन इन दिस एग्जाम्पल. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. सो सेकेंड वन इज 28 और 30 के बीच में क्या आता है? तो 28 और 30 के बीच में बच्चों आता है हमारा 29. एंड हियर 70 एंड 72 के बीच में क्या आता है? इट विल ऑलवेज 71. आफ्टर दैट 94 के बाद क्या आता है बच्चों? 94 के बाद और 96 से पहले क्या आता है? इसमें बच्चों आप देख सकते हो आपका बिफोर एंड आफ्टर भी इसमें वी आर रिवाइजिंग नाइसली. तो बच्चों इसमें बिफोर एंड आफ्टर का भी यूज हो रहा है और हम इन बिटवीन उसको बोल करके फिल कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स आफ्टर 94 इट विल कम 95 एंड 96. उसके बाद तो 94 के बाद में क्या है? 95 और 96 से पहले क्या आया बच्चों? 95 और इन बिटवीन क्या बन गया? 95 नंबर इन बिटवीन बन गया. किसका? 94 और 96 का. एज इट इज बच्चों हियर 72 और 74 के बीच में क्या आता है? 73 आता है. एंड हियर इट्स 82 एंड 84. 82 और 84 के बीच में क्या आता है बच्चों? इट इज ऑल्सो कम 3 यानी कि 83 आता है. सो आई विल राइट हियर 83. आफ्टर दैट बच्चों यू कैन डू दिस विद योर सेल्फ. ये आप अपने आप से करेंगे. जैसे हमने ये दोनों बॉक्सेस को फिल किया है व्हाट कम्स इन बिटवीन, वैसे ही बच्चों ये आप फिल करोगे इन बिटवीन में. दिस इज योर homework. Okay students, after that we have question F. Fill in the blank boxes
with number before, after and between. मतलब बच्चों इसमें आपको before, after और in between बहुत अच्छे से फिलअप करने हैं और इसको फिनिश करनी है. So बच्चों here first one is done for you as an example. Comes just before, dash comes just before. मतलब 49 का before number आपको बताना था. So here it's given 48. Okay students, so इसी तरीके से let's finish this. Dash comes just before 34. 34 के पहले क्या आता है? 34 के पहले तो बच्चों 33 आता है. Am I right? Yes, it's 33. And the number comes between 64 and 66. 64 और 66 के बाद बीच में क्या आता है बच्चों? It comes here 65. क्योंकि बच्चों 4 के बाद 5 आता है, then 6 आता है, यानी कि 64, 65 and 66. So इसीलिए बच्चों we have written here 65. After that here it is 85 comes just after. अब 85 किसके बाद में आता है? तो 5 तो बच्चों 4 के बाद में आता है ना, तो 84 आएगा क्योंकि 84 के बाद ही तो 85 आएगा. So 84 here I'll write. Now these two is just for you. 98 comes just after, you will tell me. 37 comes just before, you have to tell me. So students ये दोनों इस क्वेश्चन में आप मुझे करके दिखाएंगे. आप खुद करेंगे जितना हमने ये सब किया है, फिल किया है, इनकी हेल्प से हिंट लेकर के आप इससे भी फिल करेंगे. I hope you will finish this. After that students we have our question number G and it says write the numbers in ascending order. अब बच्चों इनको ascending order में लिखना है. अगर आप भूल चुके हैं कि ascending order क्या होता है बच्चों, so let me make you revise again. So ascending order is smaller, bigger, bigger, bigger and biggest. This is the meaning of ascending order. ascending order में बच्चों क्या होता है? So ascending order में क्या होता है बच्चों? जो सबसे छोटा नंबर होता है पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही इसका ऑर्डर होता है. ऊपर अपवर्ड से बढ़ता जाता है. यही इसकी पिक्चर है, यही इससे आप हेल्प ले सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए. So students, in this first one is done for you as an example. So here it's the number was 45, 92, 74 and 85. So they have done this with सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें देखा उन्होंने, तो पाया कि it's 45. उससे बड़ा नंबर क्या है? तो बच्चों 74. फिर उससे बड़ा नंबर क्या था? 85. Then the biggest number was here 92. और इस तरीके से उन्होंने बच्चों जो असेंडिंग ऑर्डर को है यहाँ पर सॉल्व कर दिया. Next we have the next question and you will do with me. So here let's find, first of all let's find which one is the smallest number here. So 90, no, 78, no. 43, is it? 94, no. So 43, we are finding 43 as smallest number. So I will write in this circle 43. 43 लिख दिया मैंने, इसलिए उसको कट कर दिया. नेक्स्ट नंबर 43 के बाद अब इन तीन नंबर्स में से वी विल कंपेयर की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब इनमें से इसके बाद 43 से बड़ा नंबर कौन सा है. तो 43 से बड़ा नंबर तो मुझे यहाँ पर 78 दिखता है. तो आई विल राइट हियर 78 एंड क्योंकि मैंने 78 लिख दिया आई विल क्रॉस इट हियर. आफ्टर 78 and 43 what is biggest number? Bigger than 78. 78 से बिगर क्या है? 90 और 94 में बच्चों. सो 94 और 90 में 78 से बिगर नंबर है 90. सो आई विल राइट हियर 90 and will cut it. And in the last it left 94. That means it is the biggest number. That means it is the biggest number 94. तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं किस
तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म कर दिया है. सो इट इज 43, 78, 90 and 94. So students, after that, here let's solve one more question. So let's find which one is the smallest number here. Okay, bachcho. So I can see here the smallest number is 38. So I will write 38 here and will cross this number because I have written this number here. After 38, which one is the bigger number of 38? 38 से बड़ा नंबर क्या है बच्चों? तो यहाँ पर 38 से बड़ा नंबर 47 है. So I will write 47 here. 47 को मैंने कट कर दिया क्योंकि लिख लिया. After 47, which one is the bigger number than 47? It is 60. So I will write 60 here and will cut number 60. And the biggest number in this series is 96. So I will write 96 over here. So it is done. So students, and this question you need to do with yourself. Okay students, with the help of these understandings. So after that, we have our next question, and here arrange the number in descending order. अभी बच्चों उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ascending order पढ़ा था. Now we have to understand descending order, and descending order says बच्चों सबसे biggest number लिखना है पहले, सबसे biggest number, then smaller, then smaller, then smaller, smaller and smallest. ये है क्या बच्चों? आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है. इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बिगर टू स्मॉलर. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन फॉर यू. सो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या था बच्चों? इसमें देख सकते इट वॉज 94 एंड इट्स रिटन हियर इन द फर्स्ट. आफ्टर दैट 94 से छोटा नंबर क्या था? 78 था, उसको यहाँ लिख दिया. फिर 78 से छोटा नंबर क्या था? इट वॉज 43, उसको भी यहाँ लिख दिया. और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या था बच्चों इस सीरीज में? इस सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था बच्चों 32, इसको यहाँ लिख दिया. और दैट्स ऑल. ये सॉल्व हो गया हमारा सम. सो विद दिस ओनली लेट्स ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट सम. So I will try to find which one is the biggest number in this. So here in this biggest number is what I found here is 97. 97 क्या है बच्चों? सबसे बड़ा नंबर है, जिसे मैंने लिख लिया और मैं इसे कट कर देती हूँ. अब 80, 39, 84, इसमें से 97 से छोटा नंबर क्या है? तो इट इज, वैसे तो सारे छोटे हैं बट जस्ट स्मॉलर. उसके तुरंत बाद छोटा कौन सा है? तो तुरंत बाद छोटा है बच्चों 84, और 84 लिख लिया तो कट कर दिया. अब 84 के जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? उसके जस्ट छोटा नंबर, नियरेस्ट छोटा नंबर है बच्चों 80. आई विल राइट 80 हियर एंड विल क्रॉस इट. अब स्टूडेंट सबसे छोटा नंबर रह गया यहाँ पर. सबसे छोटा नंबर क्या बच गया है? 39. And here we have turned the question in descending order. Okay students, after that let's solve the next one too. So here let's find which one is the biggest number in this question. So in this question I found 74 is the biggest number. So student, I will write 74 here. And next, what is just smaller number of 74? It is 64. So I will cut this and write 64 here and will cut this too because हमने ये लिख लिया है. अगर आपको ये नहीं काटोगे बच्चों ऊपर नंबर्स को तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमने कौन सा लिखा है कौन सा नहीं लिखा, और in hurry you can make a small mistake and it will be considered as wrong. So that's why we are making it cross. So after that इसके जस्ट छोटा नंबर, नियरेस्ट छोटा नंबर कौन सा है? तो बच्चों नियरेस्ट छोटा नंबर है यहाँ पर 58. I will write 58 here, will cut it, and the rest is left 24, and this is the smallest number in this question. So 24 I will write.
So here we have done this sum too. So now this sum you have to do with yourself. Okay students? So after that you will do this sum with the help of this understanding. So after that we have another question and the question is write in expanded form. अब बच्चों आपको किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है बच्चों? जिसको आप पूरा एक्सपेंड करके लिखते हो कि किस चीज से वो नंबर बना हुआ है. सो हियर इज फर्स्ट इज आर 86. तो बच्चों जो 86 है वो किससे बना हुआ है? 8 और 6 से मिलकर के क्या बना है? 86. 8 किस प्लेस पर है बच्चों? 10 की प्लेस पर है. और 6 किसकी प्लेस पर है बच्चों? 1 की प्लेस पर है. तो बच्चों अगर 8 10 टाइम्स लिखेंगे, जो 8 है वो 10 टाइम्स होगा और 6 है जो 1 टाइम होगा, फिर बन जाएगा वो 86. सो इसको हम यहाँ पर ऐसे डिस्क्राइब करते हैं. इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी 8 10. 8 कितना है बच्चों? 10 टाइम है, तो हमने 80 लिख दिया. 8 10 जा 80 होता है, 80 हो गया. नाउ 6 क्या है? 1 के प्लेस में, मतलब 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 मिलेगा, बट 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यहाँ पर आपको 80 मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 8 10, 8 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग 80. ओके स्टूडेंट्स? एंड इफ आई, क्योंकि 6 बच्चों 1 की प्लेस पे, 1 की प्लेस पे, तो मैं 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करती हूं तो बच्चों आई एम गेटिंग ओनली 6. सो दैट इज वाई वी हैव रिटन हियर 6. 8 को 10 से मल्टीप्लाई करके 80 एंड हियर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके 6. So if I will join them together, if I will add them, I will get here 86. क्या मिलेगा बच्चों? मुझे 86 मिलेगा. अगर मैं यहाँ पर 80 को 6 से ऐड करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 86. बिकॉज 10 0 में 6 ऐड किया, इट इज 6 ओनली. 8 का 8 यहाँ आ जाएगा, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज 86. तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है. लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चन. आइए करते हैं. अब 11 में क्या है? 10 की प्लेस पे भी 1 आ रहा है और 1 की प्लेस पे भी क्या आ रहा है बच्चों? 1. अगर मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूं तो आई विल गेट हियर 10. 1 10 10. अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ बच्चों तो आई विल गेट हियर 1. एंड 10 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? यू विल 10 ऑन माई हेड, 1 on my finger. 10 1 11. So it will be 11. Okay students, it will be what? 11. And next is 35. अब 35 में जो 35, अगर मैं यहाँ पर सपोज यहाँ मैंने 35 लिख दिया, 35 का जो 3 है वो 10 की, बिकॉज बच्चों ये वाला पार्ट हमेशा कहा जाता है 10 और ये वाला पार्ट हमेशा कहा जाता है 1 में. ओके स्टूडेंट्स? सो 35 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, एक्सपेंड करती हूँ, तो 3 विल बी हियर इन दिस बिलो 10th प्लेस एंड 5 विल बी बिलो 1st प्लेस. सो अभी मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मीन्स 3 को 10 टाइम करती हूँ, तो 3 10 30 आई विल गेट हियर. एंड नेक्स्ट अगर मैं 5 को 1 से, यानी कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट हियर ओनली 5. और उसके बाद बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? इफ आई विल एड 30 विथ 5, व्हाट आई विल गेट? लेट्स अंडरस्टैंड. 30 ऑन माई हेड, 5 ऑन माई फिंगर, 30, 31, 32, 33, 34, 35. I am getting 35. So I will write here 35. That's all students. So we have understood the expandation of the numbers. So we have written these 2 questions in expanded form and the rest 2 questions you need to solve with yourself.
Okay, with these understandings, I hope you understood this question. So next we have add the following. अभी बच्चों क्या है हमारे पास addition आ गया है. So here is addition. Add the following. So here if I add, first one is done for you. So how they have added, let's understand. So student, ये बेस्ट तरीका है जब हम हेड पे और फिंगर्स पे काउंट करते हैं, लेकिन क्योंकि आप बच्चों सेकंड क्लास में आ चुके हो तो आप बिना हेड के भी से काउंट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो. तो अगर चाहिए तो आप हेड का यूज करो, नहीं चाहिए तो आप काउंट करके लिख लो. सो स्टूडेंट्स, हियर आई विल राइट हियर. हमेशा बच्चों यहाँ से आप सम की शुरुआत करते हो. सो हियर big digit always in the head and smaller digit always in the finger. So 7 is on my head, 1 is on my finger, 7 and 1 is 8. And here big digit is 5. In addition, we will consider big digits in our head. So 5 on my head, 4 on my finger, 5, 6, 7, 8, 9. What I will write here? 9. Okay students, and here 6 on my head, 1 on my finger, 6, 1, 7. And 3 on my head, 1 on my finger, 3, 4. So I will write here 4. So I got the answer here 47. Next, if I have 0 on my head, nothing on my head. Okay students, so what I will write here? 4 as it is, because 0 में 0 को किसी भी डिजिट में आप ऐड करो, it will not give you any value. 0 means 0. And here 6. If I'll count 6 on my head, 2 on my finger, 6, 7, 8. What I will write here? 8. Okay students, and इसी के जैसे बच्चों आपको ये जो बाकी के क्वेश्चंस है ये आपको खुद करने हैं. Okay students, ये this one and this one too. So students, I hope आप लोग ये सारे questions कर पाओगे और करके मुझे solve करके दिखाने वाले हो. Next is our case subtract the following. अब क्या है बच्चों आ गया मेरे पास, अब हमें subtract करना है. ठीक है students, तो subtract अभी addition सीख लिया हमने, addition solve भी कर लिया है. चलो अब subtraction करते हैं. So in subtraction we will use back counting. आप सबने back counting तो अच्छे से पढ़ ली है बच्चों, अच्छे से आती भी होगी. So we will use here our back counting for subtraction. So here it is 5, 6, 56 subtracted by 2 for 24. For example, it is solved here. So 6 on my head, 4 on my finger. अब मुझे back counting करनी है. 6 से बैक काउंटिंग करनी है मुझे. 6, 5, 4, 3, 2. तो क्या लेफ्ट ओवर यहाँ बच गया बच्चों? 2. और यहाँ लिख दिया. ठीक है. एंड नेक्स्ट हियर वी हैव 5. 5 is on my head, 2 on my finger. I will count back. So 5, 4, 3. क्या मिला बच्चों? 3. और 3 जो है वो यहाँ लिख दिया. नेक्स्ट लेट्स सॉल्व लाइक दिस ओनली. So here we have 78 subtracted by 24. So here 8 on my head, 4 on my finger. I'll count it back. 8, 7, 6, 5, 4. I am getting here again 4. Next, I have 7 on my head, 2 on my finger, 7, 6, and 5. I am getting 5 here. Okay students, now here I have 7 on my head, 0 on my finger. कुछ भी नहीं है तो 7 का तो बैक नहीं कर सकते तो 7 ही आएगा. Okay students, so here next I have 2 on my head, 1 in my finger. 2, 1. क्या रेस्ट बची है बच्चों? 1. 1 left again. And here 7 on my head, 2 on my finger, 7, 5, 7, 6, 5. What I am getting here? 5.
And now 9 on my head, 7 on my finger. हेड पे कितना है बच्चों? 9 है. फिंगर्स पे कितना है? 7 है. तो बैक काउंटिंग फ्रॉम 9. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I am getting here number 2 as a result. So I hope you understood this subtraction as well. Plus. So बच्चों, अब इसके बाद बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद योरसेल्फ विद दीज अंडरस्टैंडिंग्स. So okay question, okay students, after this, so here we have our next multiply the following. अब subtraction addition के बाद बच्चों multiplication. इसके लिए तो tables आते ही होंगे आप लोगों को. So we are going to use tables in the multiplication. So 3 6 the 18, and here this is all simple tables. So next is 7 7 the, what we'll write? 7 7 the 49. It is 49. And 9 for the student, 9 for the 36. So here next is 8 7 the, 8 7 the, what is 8 7 the student? 56. It is 56. And here 7 8 the is also 56. So we will write here 56 again. So students, इसी के जैसे आप सबको ये सारे जो टेबल्स है वो लिखनी है. लाइक 5 4s are 9 2s are 9 2s are 9 2 9s are 7 3s are 5 10s are. ये सारे टेबल्स जो है आपको एज अ मल्टीप्लीकेशन यू नीड टू सॉल्व लाइक दिस. हियर स्टूडेंट्स, after that, here we have some word problems on addition and subtraction. अब बच्चों हम addition subtraction के word problems को solve करने वाले हैं. So first one is done for you. Let's discuss this example. Pranav had 12 balloons. His mother gave him 7 balloons more. How many balloons have Pranav? Now मतलब बच्चों प्रणव के पास 12 बलून थे, 12 बलून. उसकी मम्मा ने उसको 7 बलून और दे दिए. अब उसके पास टोटली कितने बलून हो गए? दिस यू नीड टू राइट. 12 बलून से बच्चों 7 बलून और मिल गए, टुगेदर 19 बलून हो गए. क्यों बच्चों? हमें इसे एडिशन करना था. हमने एडिशन किया. 12 ऑन माई हेड, 7 ऑन माई फिंगर. 12 13 14 15 16 17 18 19. कितने बलून्स हो गए बच्चों? 19 बलून्स. एज इट इज, इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर द सेकंड क्वेश्चन इज देयर आर 75 बॉयज एंड 23 गर्ल्स इन क्लास. इन क्लास सेकंड क्लास में बच्चों कितने 75 बॉयज है और 23 गर्ल्स है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. तो बच्चों कितनी गर्ल्स थे हमारे पास? कितने बॉयज कितने थे बच्चों? 75 बॉयज थे. और गर्ल्स कितनी थी बच्चों? 23 गर्ल्स थी. अब वी हैव टू ऐड देम. जैसे हमने अभी प्रीवियसली क्वेश्चंस में एडिशन किए थे, तो एडिशन यहाँ पर दोबारा से करने वाले हैं. तो बिगर नंबर ऑन माई हेड, स्मॉलर नंबर ऑन माई फिंगर. So 5 on my head, 3 on my finger. 5 6 7 8. I will write 8 here. 7 on my head, 2 on my finger. 7 8 9. I will write here 9. So total number of students in the class are 98 students. How many students बच्चों? 98. So after this, the next question is students, Mohan scored 58 runs and 30 runs in a test match. मतलब बच्चों मोहन ने स्कोर किए 58 रन एंड 30 रन इन अ टेस्ट मैच. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय मोहन. मोहन ने एक टेस्ट में 58 रन स्कोर किए और दूसरे टेस्ट में 30 रन स्कोर किए, जो कि क्या थे? टेस्ट मैच थे. अब इनको टोटल ऐड करके हमको फाइंड करना, सम करके कि बच्चों मोहन ने टोटल कितने जो रन थे वो स्कोर किए थे. सो हियर 58 रन उसने पहले टेस्ट में किए थे और सेकंड में 30 रन किए थे. सो नाउ वी विल ऐड 8 ऑन माई हेड, 0 ऑन माई फिंगर. तो 8 में और क्या काउंट करो? कुछ नहीं काउंट कर सकते. तो आई विल राइट 8 एज इट इज हियर. सो 8 एंड देन 5 ऑन माई हेड, 3 ऑन माई फिंगर
and 5 on my head, 3 on my finger. So 5, 6, 7, 8. I will write 8 here again. Okay students, so total number of score run is 88. 88 run जो है मोहन ने score किया है. Okay students, so here, so after adding we have some subtraction word problem. So here Rahul had 95 rupees. He gave 35 rupees to his younger brother Nikunj. Find the rupees with Rahul now. अब मतलब बच्चों ये इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो राहुल के पास 95 रुपीज थे, 35 जो रुपीज थे उसने अपने छोटे भाई निकुंज को दे दिए. फाइंड द रुपीज विद लेफ्ट विद राहुल. मतलब अब राहुल के पास कितने पैसे बचे, कितने रुपए बचे हैं वो आपको फाइंड करना है. तो हियर स्टूडेंट्स, उसके पास कितने रुपए थे पहले? इन द बिगिनिंग ही हैज 95 रुपीज. कितने रुपीज उसने अपने यंगर ब्रदर निकुंज को दे दिया बच्चों? उसने दे दिया है 35 रुपीज. नाउ इन द एग्जाम्पल वी आर एबल टू सी इन आफ्टर सब्ट्रैक्शन 5 में से 5 को माइनस किया. लाइक 5 on my finger, I am subtracting 5 again. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I am getting 0. तो यहाँ पर 0 लिख दिया. Now 9 on my head, 3 on my finger. 9, 8, 7, 6. 6 यहाँ लिख दिया. So now total left rupees with Rahul is 60 rupees. Okay students, and in the next question, let's solve. So students, we have our next question of subtraction and it is Bunty had 87 rupees. Out of them, he spent 69 on cricket bat. How many rupees are left with Bunty now? मतलब बच्चों, बंटी के पास कितने पैसे, कितने रुपीस थे? बंटी के पास 87 रुपीस थे और उसमें से उसने क्या किया? 69 रुपीज का क्या किया? क्रिकेट बॉल ले लिया. अब उसके पास आपको बताना है कि कितने रुपीज जो है लेफ्ट ओवर है, बचे हुए हैं. तो स्टूडेंट्स, वी विल राइट इट हियर एज 87 रुपीज उसके पास पहले थे और उसके बाद 69 रुपीज का उसने बॉल ले लिया. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सब्ट्रैक्ट देम. सो 8 अभी बच्चों we have to take carry in this question. कैरी बच्चों हम तब लेते हैं जब इसके पास जो अपर नंबर होता है वो स्मॉलर होता है, उसके पास इनफ खुद ही नहीं होगा बच्चों, तो वो कैसे आगे दे देगा? इसको नहीं दे पाएगा ना. तो इसीलिए बच्चों वो इससे कैरी करता है. सो लाइक स्टूडेंट्स, हियर 8, इसके पास 8 है तो इसने इसको 1 नंबर दे दिया, तो इसके पास कितना हो गया? यहाँ पर 7 हो गया. नाउ इट विल बिकम 17. अब उसके पास कितने नंबर हो जाएंगे बच्चों? उसके पास हो जाएंगे 17. अभी 17 में वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 17 on my head, 9 on my finger. So I will subtract here 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर? I will get here 8. Okay students, and here कितना left over था बच्चों? कितना बचा हुआ है? Already only 7 बचा हुआ है. So 7 on my head, 6 on my finger. So 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What left here बच्चों? It's left only 1 here. So that's all. उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं बच्चों? जो यहाँ पर बंटी था उसके पास बच्चों अब ओनली रुपए बचे हैं 18 रुपीज. हाउ मेनी रुपीज? 18 रुपीज. ठीक है, ओनली इतने रुपए ही उसके पास अब बचे हैं आफ्टर परचेजिंग द क्रिकेट बॉल. So next we have next question of subtraction. There were 98 plates in a hotel. Out of them 39 were broken. Find the number of unbroken plates. मतलब एक होटल में बच्चों कितनी प्लेट्स थी? 98 प्लेट्स थी. अब 98 प्लेट्स में से बच्चों जो प्लेट्स थी 39 वो टूट गई, ब्रोकन. अब उसमें से कितनी प्लेट जो है वो बची है अनब्रोकन प्लेट्स, वो हमें फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स, here we have written कितनी प्लेट्स in the beginning? 98 प्लेट्स थी. अब कितनी प्लेट्स तो टूट गई हैं? वो प्लेट्स टूट गई हैं आपके पास 39 प्लेट्स जो है वो ब्रोकन है. अब कितनी अनब्रोकन प्लेट्स बची हैं? For that we need to subtract it. And students,
here we will follow our finger and head rule. So here, तो यहाँ पर भी बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें we have to take carry from 9, क्योंकि 8 क्या है, स्मॉलर नंबर है और 9 क्या है, बिगर नंबर है. तो कभी भी बच्चों एक स्मॉलर नंबर से एक बिगर नंबर को हम माइनस नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we need to make it in balance. हमें इसे बैलेंस बनाना पड़ेगा. तो बच्चों अगर ये इससे एक बोरो करता है, अगर ये इससे एक बोरो करता है तो क्या करेगा, इसके पास कितने हो जाएंगे बच्चों, 8 हो जाएंगे, और इसके पास कितने हो जाएंगे, 18, क्योंकि उसने उससे कैरी ले लिया, उससे मांगा कि मुझे दे दो, मेरे पास नहीं है, उसने दे दिया उसको. ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या बन गया, वो 8 का 18 बन गया. अभी 18 में से मैं 9 माइनस करती हूँ तो कितना बचता है स्टूडेंट्स, 18 ऑन माई हेड, 9 on my finger, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. कितना बचता है बच्चों, 9. So I will write here 9 and 8 on my head, 3 on my finger. 8, 7, 6, 5. कितना बच रहा है, 5. So I will write here 5. So the number of plates unbroken in the hotel are 59 plates. How many plates students? You can see it's 59 plates are unbroken in the hotel. So after that students, the rest question with this understanding you can solve with your own. So here let's move forward. We have multiple choice questions too. So students, let's have our multiple choice questions. So first the question is टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको सही करेक्ट ऑप्शन पर सारे क्वेश्चन के टिक करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है बच्चों. ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी है, और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी है. ये सारे क्या है, 2 डिजिट नंबर है. पर विच वन इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, कैन यू टेल मी हियर. बट 10 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. एंड 99 और 90 इसमें से क्या हो सकता है. तो 90 और 99 में से तो कौन बिगर होता है बच्चों, 99 बिगर होता है. इसीलिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको करेक्टली टिक करेंगे, बिकॉज हमारा जो आंसर है वो यही है 99. 99 क्या है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 39 comes before, just before. जो 39 है बच्चों वो किसके पहले आता है, मतलब किसके पहले 39 जो आता है, क्या 38 के पहले 39 आता है, नो. क्या 41 के पहले 39 आता है, बिल्कुल भी नहीं. तो बच्चों लेफ्ट ओनली 40, जो है 39 है 40 से जस्ट बिफोर आता है, क्योंकि 39 के बाद ही तो 40 आता है. इसीलिए 39 क्या है, जस्ट बिफोर नंबर है 40 का. सो वी विल राइट हियर 40. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95 कम जस्ट आफ्टर. 95 किसके बाद में आता है, 95 जो है बच्चों किसके बाद में, 96 के बाद में, नो. 94 के बाद में हो सकता है, क्या 90 के बाद में, बिल्कुल भी नहीं. तो बच्चों हमारा जो 95 है वो किसके बाद में, जस्ट 94 के बाद में आता है. And here, this is the number. Here the next question is the number comes between 97 and 99. ये तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए. 97 और 99 के बीच में क्या आता है, क्या 92 आएगा, हो ही नहीं सकता. 96 आएगा, पता नहीं आ सकता. क्या 99, क्या 98 आता है, हो सकता है. हम एक काउंट करके देख लेते हैं. 97 के बाद क्या 98 फिट होता है, हाँ होता तो है. 97, 98 और 99. So that's all. Our answer is here 98. So we will write here 98 only. So students, in this chapter, that's all. I hope you all learned the many things and you have revised the previous classes, study and knowledge. So students, in this class we're here only. I'll see you in the next class. Till then, students, take care. Bye-bye.